آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 6 آیت۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ یہ آیت ہم سب کو زبانی رٹی ہوئی ہوتی ہے، ہر کرسچن جانتا ہے اس آیت کو اور بولتا ہے اپنے روزمرہ زندگی میں بھی اس آیت کا اکثر ہی استعمال کرتا ہے، لیکن جو روح القدس نے آج کلام بخشا وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہوں۔ زندگی کیا ہوتی ہے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا تو یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ یاد رکھنا کہ یسوع مسیح، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کرو گے تو یقینی مرو گے، وہ گناہ چھوٹا ہے وہ گناہ بڑا ہے، گناہ کرو گے تو ضرور مرو گے، کیونکہ گناہ کی سزا موت ہے۔ گناہ کر کے ہم کبھی زندہ نہیں رہ سکتے، ہم گناہ کر کے زندگی نہیں پا سکتے، یہ خدا کا قانون ہے۔ اور اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو بھی ہم یہی دیکھتے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو جیل کاٹنی پڑتی ہے، یعنی سزا ملتی ہے، اور اگر وہ کسی کا مرڈر کرتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کو بھی یہی سزا ملتی ہے کہ اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے۔ تو یہ جو قانون ہے یہ اچھا ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہو تو انسان پرہیزگاری میں اور ڈر اور خوف میں نہیں رہے گا اور جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو صلیب پر جنہوں نے جان دی وہ گناہ کی وجہ سے مرے، لیکن وہ گناہ یسوع مسیح کا خود کا نہیں تھا، بلکہ وہ گناہ ہمارا تھا، ہم انسانوں کا تھا، ہماری دنیا کا تھا جہاں ہم رہتے ہیں۔ دنیا سے مطلب انسانوں کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو گناہ کی مزدوری ہم نے دیکھ لیا موت ہے جو یسوع مسیح کو مل گئی، لیکن یسوع مسیح کیوں جی اٹھے، زندہ کیوں ہو گئے، ان میں پھر سے زندگی کیوں ہے، وہ زندگی کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خود سے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ گناہ کرنے کی وجہ سے موت ہے، لیکن گناہ نہ ہو تو زندگی ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح زمین پہ آ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، یعنی زندگی یسوع مسیح ہیں، اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میرے اندر گناہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ اتنا لمبا عرصہ خداوند یسوع مسیح زمین پہ رہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس سے صاف ظاہر ہے، یہ ہمارے لیے پروف ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا کیونکہ وہ زندہ ہو گئے۔ گناہ ہوتا تو وہ مرے رہتے، کیونکہ خدا کے نزدیک، باپ کے نزدیک انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ خداوند سب کو برابر لیتے، وہ خود خدا خود ہو، خدا باپ کا بیٹا ہو، روح القدس ہو، یا کوئی بھی مسیحی ہو یا کوئی غیر قوم ہو، خدا کا انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اگر بیٹا کوئی غلط کرتا، کچھ گناہ، کوئی کمی خامی رہ جاتی تو یسوع مسیح زندہ نہ ہوتے، لیکن یسوع مسیح نے کہا زندگی میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح پاک ہیں۔ زندگی کس میں ہے؟ جو پاک ہے، جو گناہ نہیں کرتا وہ زندگی رکھتا ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زندگی رکھنے والا وہ ہے جو پاک ہے، جو گناہ نہیں کرتا وہ زندگی رکھتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ خدا باپ زندہ ہے، عبدالآباد زندہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پاک ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کی وجہ کیا ہے؟ پاکیزگی، پاک رہنا۔ ہمیں جاننا اور سیکھنا ہے کہ زندگی کس میں ہوتی ہے، زندہ کون ہوتے ہیں جن میں گناہ نہیں ہوتا، گناہ پایا نہیں جاتا۔ اب ہم دوسرا خداوند کی اور مزید خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 25ویں آیت۔ یسوع نے اس سے کہا
क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने क़यामत और ज़िंदगी दोनों की बात की। और पहले तो हम ये देखते हैं कि क़यामत होती क्या है। क़यामत कहते हैं जब कोई मर जाए और दोबारा ज़िंदा हो तो इसको कहते हैं क़यामत। दोबारा ज़िंदगी पाना, मुर्दों में से जी उठना क़यामत कहते हैं। क़यामत अदालत को नहीं कहते। अदालत का मतलब फ़र्क है और क़यामत का मतलब फ़र्क है। अब यीशु मसीह ने ज़िंदगी के साथ कि अगर हम ज़िंदा हैं तो खुदावन ने ये भी साथ कहा कि अगर मर भी जाओगे तो मैं दोबारा तुम्हें ज़िंदा कर दूंगा, दोबारा तुम्हें जिला दूंगा, तुम्हें उठा दूंगा, खड़ा कर दूंगा। तो खुदावन ना सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी देते हैं, बल्कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज़िंदगी देता हूँ, लेकिन अगर मर भी जाओ तो भी मैं तुम्हें ज़िंदा करने की कुदरत, ताकत और इख्तियार रखता हूँ। अब ये दो चीज़ें हैं, ज़िंदगी और क़यामत। ज़िंदगी हमने सीखा कि ज़िंदगी क्या है, जिसमें गुनाह नहीं, जो पाक है वो ज़िंदा ही रहेगा। दूसरी बात क़यामत है कि जो अगर मर भी जाता है तो दोबारा जी उठे तो वो क़यामत है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यीशु मसीह ये दोनों सिफतें, कुदरत, ताकत, इख्तियार अपने अंदर रखते हैं। ये यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं ज़िंदगी भी और मैं क़यामत भी हूँ। अब हम देखते हैं कि हम इंसान ज़िंदगी और क़यामत को देखते हैं, या हम अब ज़िंदगी किस में है, जिसमें पाकीज़गी है, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, सबसे पहले हमारे इर्द गिर्द क्या है, इंसान और तमाम चीज़ें, जिसमें घर, गाड़ी, बर्तन, फर्नीचर और भी जितनी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हर तरह की जो जिस्मानी चीज़ है जो हमारे घरों में होती है, कपड़े, जूती, हर तरह का, मतलब खाना भी हो सकता है, जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हमारे घरों में है, वो सब की बात मैं कर रही हूँ। अब हम ये देखते हैं कि जो घर है या जो गाड़ी है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द इंसान है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम है। अगर इंसान गुनाह ना करता तो मौत ना आती। इसका मतलब है कि जब हव्वा और आदम ने गुनाह किया तो मौत ज़मीन पर आ गई, इंसानों के ऊपर मौत आ गई। तो अब भी कौन वजह बनी? गुनाह क्या है? खुदा की नाफरमानी करना, खुदा का हुक्म ना मानना गुनाह है। जब उन्होंने ये गुनाह किया तो इंसान की ज़िंदगी में गुनाह आ गया। ठीक है, अब गुनाह आ गया तो इसका मतलब है कि इंसान जो है वो ज़िंदगी नहीं है, बल्कि गुनाह की वजह से मुर्दा है। अब हम पहला पहलू देखते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदगी है और इंसान क्या है? मुर्दा। ये दोनों फर्क चीज़ें हैं, ऑपोजिट है। हम देखते हैं कि हम इंसान ज़िंदगी की तरफ जाते हैं या मुर्दगी को पसंद करते हैं। हमारी चॉइस क्या है? हम ज़िंदगी को पसंद कर रहे हैं या हम मुर्दा चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। इंसान गुनाह करता है तो वो मुर्दा है, और हम अपनी ज़िंदगी में खुदा यानी ज़िंदगी से ज़्यादा मुर्दा चीज़ों को पसंद करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं। हमारे इर्द गिर्द सबसे पहले इंसान है, जो गुनाह करता है वो मुर्दा है, और हर एक इंसान ने गुनाह किया और वो मुर्दा है। तो हम किसको पसंद करते हैं? यीशु से ज़्यादा मुर्दा इंसानों को पसंद करते हैं। हम उनके पीछे लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि ज़िंदगी हमें क्या सिखा रही है, यानी यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं। हम ये पसंद नहीं करते, लेकिन हम अपनी फ्रेंड्स की बातें ज़रूर पसंद करते हैं।
हम अपने शौहर की चिकनी चुपड़ी बातें ज़रूर पसंद करते हैं, हम अपनी बीवी की दिल लुभाने वाली बातें ज़रूर पसंद करते हैं, हम अपने बहन भाइयों की गलत बातों में शरीक होकर उनको पसंद करके उनका साथ देकर वही काम करते हैं जो वो मुर्दा इंसान हमें सिखाता है। इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं वो मुर्दा बातें करते हैं, गुनाह की बात करते हैं और हमें वो पसंद आती हैं, और हम जिंदगी को पसंद नहीं करते जिसमें पाकीज़गी है, हम मुर्दा चीज़ों को पसंद करते हैं। यीशु मसीह एक तरफ, यीशु मसीह जिंदगी हैं और गुनाह की वजह से हम लोग मुर्दा हैं, दोनों में फ़र्क आ गया। दूसरा नुक्ता हम ये देखते हैं कि जिन चीज़ों को जो हमारी ज़िंदगी में इर्द गिर्द हैं, काम, कपड़े, जूती, खाना पीना, घर बार, हम इनके पीछे, ये मुर्दा चीज़ें हैं, ये सांस नहीं लेती, हम इससे सीखते हैं, ये पाक नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इनके पीछे, ये हमसे बात नहीं कर रहे। कपड़े, जूती, घर बार, गाड़ी हमसे बातें नहीं करती, लकड़ी, लोहा, ये हमसे बातें नहीं करती, मगर हम इनके पीछे क्या करते हैं? ये मुर्दा चीज़ें हमें मुर्दा बनाती हैं मज़ीद। हम इनको देखते हैं और इन मुर्दा चीज़ों को पसंद करते हैं। ना तो इन चीज़ों में ज़िंदगी पाई जाती है, ना पाकीज़गी पाई जाती है, ये वक्ती हमारी ज़रूरत है। लेकिन हम इस वक्ती अपनी ज़रूरत को, जो हमारे इर्द गिर्द बेजान चीज़ें हैं, हम इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के ज़िंदगी समझना शुरू हो जाते हैं और इनके पीछे भागते हैं। कपड़े, जूती, घर बार, गाड़ी, लालच, डिज़ायर्स, ख्वाहिशें आना शुरू हो जाती है और इनके पीछे हम लड़ते झगड़ते गुनाह करते हैं। यानी ये मुर्दा चीज़ें हमें मुर्दा बनाती हैं। इन मुर्दा चीज़ों से हम क्या निकलता है? गुनाह निकलता है, वो हमारे अंदर जाता है और ये चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द है और जिनको हम पसंद करते हैं, ये हमें ज़िंदगी नहीं देता, बल्कि इनके वजह से हमारे अंदर गुनाह आता है और हम गुनाह की वजह से मुर्दा होते जाते हैं। एक तो इंसानों की वजह से, दूसरा इर्द गिर्द की चीज़ों की वजह से। इन चीज़ों को मैं मुर्दा नहीं कह रही, ये वक्ती हमारी ज़रूरत है, लेकिन इनके अंदर ज़िंदगी नहीं पाई जाती। अब हम फिर से यीशु मसीह की तरफ आते हैं। ये बात सीखने के लिए यीशु मसीह ने कहा क़यामत मैं हूं। क़यामत का मतलब ये है कि जिंदा करना। यीशु मसीह खुद भी अपने अंदर जिंदगी रखते हैं और वो ऐसी कुव्वत, ताकत, इख्तियार रखते हैं कि उनके अंदर से जिंदगी बाहर निकलती है और हम जिंदा हो जाते हैं। लेकिन अब हम फिर इंसानों की और दुनिया की मुर्दा चीज़ों की तरफ आते हैं। इंसान खुद भी गुनाह करता है तो वो मुर्दा है। हम जिनके पीछे जाते हैं, जिन इंसानों के पीछे हम जा रहे हैं, वो मुर्दा हैं और उनके अंदर से जिंदगी नहीं निकलती, बल्कि उनके अंदर से गुनाह निकलता है और वो गुनाह हमें जिंदगी देने की बजाय मुर्दा कर देते हैं। यीशु के पीछे जाएंगे तो जिंदगी मिलेगी, वो हमें पाकीज़गी ही देंगे, जिंदा ही करेंगे। लेकिन इंसानों के पीछे जाएंगे तो वो क्या करेंगे? खुद भी वो मुर्दा है और उनके अंदर से मुर्दगी ही निकलेगी। यीशु कहते हैं मैं जिंदगी हूं, तो ज़ाहिर है जिंदगी निकलेगी। चीनी में से चीनी निकलेगी, मिठास निकलेगी, नमक की बोतल में से नमक ही निकलेगा, सूरज को देखो तो उसमें से रोशनी ही निकलेगी। तो वो सिफ्त जो है वो बदली नहीं जा सकती। यीशु ने कहा मैं जिंदगी हूं और मैं क़यामत हूँ, यानी मैं ज़िंदगी खुद भी रखता हूँ और मेरे अंदर से ज़िंदगी निकलती है और मैं उस ज़िंदगी से तुम लोगों को भी ज़िंदा कर देता हूँ। लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो सारे मुर्दा चीज़ें हैं, उनमें से कोई भी ऐसा ना ज़मीन पे इंसान है, कोई शख्स है, कोई रिश्तेदार है, कोई ऐसी ज़मीन पे चीज़ नहीं जो ज़िंदा है और वो ये कह सके या दावा कर सके कि मैं ज़िंदगी हूँ, मेरे पास आओ। कोई इंसान नहीं कह सकता मैं ज़िंदा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुनाह है।
कोई चीज़ ये नहीं कह सकती, जो हमारे घरों में चीज़ें हैं, बेजान चीज़ें हैं, वो ये नहीं कह सकती मैं ज़िंदगी हूँ, मेरे पास आओ, और जब तुम मेरे करीब और आओगे, तुम लोगों को मेरी ज़्यादा चाहत होगी, तो मैं खुद तो ज़िंदा हूँ, मैं तुम लोगों को भी ज़िंदा कर दूंगा। लेकिन हमारे इर्द गिर्द जितनी भी मुर्दा चीज़ें हैं, जिनमें गुनाह है, वो मुर्दा है। जित इंसान है वो मुर्दे हैं। जब तक वो यीशु मसीह के खून से अपने आप को धो ना ले, यीशु मसीह पर ईमान ना रख ले, लेकिन जो जहां से ये जिंदगी का चश्मा जारी है, हम उसके पास जाएं। हम मुर्दा चीज़ों को ढूंढते, मुर्दा चीज़ों को पसंद करते, मुर्दा चीज़ों के पीछे भागते, मुर्दा चीज़ों के पीछे अपना वक्त जो है वो ज़ाया करते हैं। हम जिंदगी की बजाय मुर्दा चीज़ों को पसंद करते हैं। क्या हम जब दुनिया में अच्छी दिल लुभाने वाली चीज़ें जो हमारी आँखों को पसंद आती, उसकी जो चमक है, जब हमारी आँखों पे पड़ती है, तो हम ये नहीं कहते कि हमारे पास ये हो। हम उस मुर्दा चीज़ को अपने घर में लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। तो हमारी जो पसंद है, हम इंसानों की क्या पसंद है, हम क्या पसंद करते हैं, हमें क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, चूँकि हम लोग खुद गुनाह में हैं, मुर्दा हैं, इसलिए हमें भी मुर्दार ही पसंद हैं। हम देखते हैं कि जो गिद्ध है वो मुर्दार चीज़ें ही खाते हैं। जो उनकी अपनी पसंद है, जो उनकी अपनी हकीकत है, जो उनकी अपनी सच्चाई है, वो वही चीज़ें पसंद करते हैं। हम क्यों नहीं, यीशु मसीह ने भी कहा, खुदावंद ने कहा कि नूर तुम्हारे दरमियान आया और तुमने नूर को पसंद ना किया। क्यों? क्योंकि हमारी सिफ्त क्या है, हमारी हकीकत क्या है, हमारी सच्चाई क्या है, मुर्दगी यानी गुनाह। हम जिंदा नहीं हैं, हम जिंदगी नहीं रखते, हम जिंदा लोग नहीं हैं, हम गुनाह की वजह से मुर्दा हैं और हम मुर्दार ही पसंद करते हैं, गिद्ध की तरह। हमें गुनाह की चीज़ें ही पसंद हैं। हमें गप्पे मारना, फजूल चुगलियाँ लगाना, गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, यही पसंद है। हमें गलत काम ही पसंद हैं, हमें गाड़ियाँ ही पसंद हैं। गाड़ी में से ज़िंदगी निकल के आपको, जब हम मर जाएंगे या किसी हमारे अजीज़ की लाश पड़ी हो या हॉस्पिटल में वो सीरियस हो, तो एक गाड़ी जिसके हम पीछे बहुत ज़्यादा गाड़ियों की तारीफ़ें करते हैं और गाड़ियों को पसंद करते हैं, क्या हम हॉस्पिटल के बाहर या जहां हमारे अजीज़ की लाश पड़ी है और उसको दफन करना है या कब्रिस्तान में हम लोग वो गाड़ी रखें और ज़िंदगी कह सकते हैं, गए गाड़ी अब तेरे अंदर जो ज़िंदगी है वो निकाल के मेरे अजीज़ को ज़िंदा कर दे? नहीं। तो भी हम लोग गिद्ध की तरह मुर्दार चीज़ें पसंद करते जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो खुद भी ज़िंदगी नहीं है। अगर ये खुद ज़िंदगी रखते, हम दीवारें हैं हमारे घर फर्नीचर है, बेड है, चीज़ें हैं, खाने पीने की भी है, अगर हम रोटी भी कहें, तो यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने कलाम सुनाते हुए बोला, कहा कि तुम लोगों ने आसमान से मन खाया और तुम्हारे बाप दादा वो मन खा के मर गए। तो जिन चीज़ों में हम जिंदगी ढूंढते फिरते हैं, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है ज़मीन पे जो आपको जिंदा रख सके। कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता। अब हमें ये पहचान खुदा के रूह के वसीला से मिल रही है कि ज़मीन पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़िंदा हो। क्यों? क्योंकि सब गुनाह करते हैं। दूसरा, जो बेजान चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं, वो उनमें हम पढ़ के, वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहने की वजह से हम लोग चूँकि कमज़ोर और तारीकी को पसंद करने वाले हैं, गुनाह को पसंद करने वाले हैं, तो जब इन चीज़ों को, मुर्दार को देखते हैं, तो हमारे अंदर
गुनाह मुर्दगी बढ़ती ही जाती है, मुर्दगी हमारे अंदर से ख़त्म नहीं होती। तो हम लोग अब इस कलाम को जब जान जाएंगे तो हमें क्या सीखना चाहिए, हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए, हमें किसको पसंद करना चाहिए, ज़िंदगी को या मौत को। हम मौत को पसंद करेंगे ही, क्योंकि ये हमारी सिफ्त में, हमारी ज़ात में, हमारी रूह के अंदर है। जब तक खुदा फजल ना करें, जब तक खुदा मोहर ना करें, हम जितना मर्जी कलाम सुन लें, हमारे दिल सख्त के सख्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर खुद से ज़िंदगी, ना ज़िंदगी की पहचान, ना पाकीज़गी, ना पाकीज़गी की कोई कदर ही नहीं है। हम पाक चीज़ों को पसंद ही नहीं करते, हम ज़िंदगी को पसंद ही नहीं करते, हम मुर्दा चीज़ों को पसंद करते हैं, हम मौत को पसंद करते हैं। हम ये बेवकूफ़ी हमारे अंदर, हमारी रूह के फल हैं। हम मुर्दा चीज़ों को पसंद करते हैं और इसमें खुश होते हैं। हम खुद मुर्दा हैं, तो जो मुर्दा होता है वो उन्हीं में खुश होता है। गिद्ध जो है वो मुर्दार में ही खुश होता है। उसको जिंदा जानवर से, जिंदा परिंदे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी ज़ात में है, उसकी सोच ही ऐसी है। तो हम इंसान भी इसी तरह तारीकी में है, गुनाह में है, हमारी रूह के अंदर गुनाह है, हम गुनाह में पैदा हुए हैं और हम गुनाह ही पसंद करते जाते हैं। हमें बिल्कुल ये फिक्र नहीं, हमें ये बिल्कुल हमारी सोच में नहीं आता कि इसका नतीजा आखिरकार वक्ती खुदा ने हमें ये ज़िंदगी दी है, ये भी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी खुदा ने हमें यहाँ पर दी है, ताकि हम इस वक्ती ज़मीनी ज़िंदगी में, जो जिस्मानी हमें ज़मीन पर रहने का मौका मिला है, इस ज़िंदगी के साथ हम हकीकी ज़िंदगी को जान सकें। हकीकी ज़िंदगी में पाकीज़गी है, कोई गुनाह नहीं, जिसकी वजह से ज़िंदगी फॉरएवर रहती है। वो वक्ती नहीं है। यीशु मसीह की ज़िंदगी वक्ती नहीं है, अबदी है, आज कल और अब तक यकसा है। क्यों कहा जाता है? हमेशा की ज़िंदगी है। यीशु हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं, क्योंकि हर वक्त वो पाक है। तो अगर हम लोग इस ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें मौका दिया है, तो हमें सिर्फ मौका मिला है, ये हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। हम हर वक्त ज़िंदा नहीं रहेंगे। सिर्फ हमेशा ज़िंदा रहने के लिए खुदावंद ने हमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी का इख्तियार के वसीला से हमें थोड़ी देर के लिए ज़िंदगी दी है, बख्शी है। हमने इसको हमेशा की ज़िंदगी में यीशु के वसीला से बदलना है। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग हमेशा की मौत से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाओगे। तो हम कन्वर्ट हो सकते हैं। हमारी भी ये जो वक्ती ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी में बदली जा सकती है। हमने ये ज़िंदगी की झलक देख ली है। लेकिन अगर हम अपने आप को पाक रखेंगे, अगर हम अपने अंदर गुनाह नहीं आने देंगे, हम गुनाह खुद भी अपने अंदर रखते हैं और दूसरी मुर्दार चीज़ों को पसंद करके भी उनके अंदर से जो गुनाह मुर्दगी निकलती है, हम उसको भी अपनाते और अपने आप को गुनाह में डालकर मौत में रखते हैं। हमने आज ये अक्लमंदी अपने अंदर समझदारी रखनी है इस कलाम के वसीला से कि हम जो खुद गुनाह में हैं और जो हमारे इर्द गिर्द भी लोग हैं वो भी गुनाह में हैं, उनमें से ज़िंदगी नहीं निकल सकती। वो खुद भी गुनाह करते हैं, मैं भी गुनाह करता हूँ या करती हूँ, तो मैंने इसमें से अपने आप को निकालना, छुड़ाना है। मैंने ये तहैया करना है, मैंने ये फ़ैसला करना है, मैंने अपने लिए
ये सोच रखनी है, अपने लिए ये ख्याल रखना है, अपने लिए भला सोचना है कि जो मौका खुदा ने मुझे ज़िंदगी में दिया है ये भी ज़िंदगी मेरी नहीं है, लेकिन जो ज़िंदगी रखता है मैंने उस तरह से जीना है, मैंने उस ज़िंदगी के पास जाना है, मैंने मुर्दार चीज़ों के पास नहीं जाना क्योंकि उनमें से मुर्दगी ही निकलती है। मैं खुद भी मुर्दा हूँ, ना वो ज़िंदगी रखते हैं ना मैं ज़िंदगी रखता हूं, तो किस तरह से मैं ज़िंदगी पाऊंगा। आज हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदगी रखते हैं और उनमें से ज़िंदगी निकलती है क्योंकि उन्होंने कहा मैं क़यामत हूं, तो हमारे अंदर ज़िंदगी आ सकती है और हम ज़िंदा हो सकते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत है इस पहचान की कि ज़िंदगी कौन है और मुर्दगी कौन है। हमारी चॉइस क्या है, हम किधर जा रहे हैं, हमने किसके पीछे जाना है, हमने ज़िंदगी के पीछे जाना है या मुर्दगी के पीछे जाना है। हमने अपनी ज़ात को, हकीकत को बदलना है। हमारी ज़ात, हमारी हकीकत, हमारी सच्चाई मौत है। हम मुर्दगी को पसंद करते हैं, हम तारीकी को पसंद करते हैं, हम गुनाह को पसंद करते हैं और गुनाह में ज़िंदगी नहीं होती। यीशु मसीह पाक है, यीशु मसीह ज़िंदगी है, वो क़यामत है। हमने उनकी तरफ जाना है ताकि हम उनकी ज़िंदगी से हम ज़िंदगी पा जाएं और हम यीशु मसीह की ज़िंदगी की वसीला से ज़िंदगी पाते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को हमारी खातिर कुर्बान किया और हम उनकी वजह से ज़िंदगी पा लेते हैं। ये तो एक दफ़ा हमने तौबा की और पा ली, लेकिन जब हम दोबारा गुनाह करते हैं तो फिर हम मुर्दगी में आ जाएंगे, फिर हम मुर्दा हो जाएंगे। तो हमने अपने आप को जिंदा करने के लिए, जैसा यीशु मसीह ने ज़िंदगी गुजारी और उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई गुनाह साबित करके दिखाओ, वो यीशु मसीह पाक हैं, खुदा पाक हैं। जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई तालीम पर तौबा करने के बाद अमल नहीं करते, हम ज़िंदगी नहीं पा सकते। हम सब के सब मुर्दा हैं, हम सबके साथ ज़िंदगी नहीं रखते और हम खुद भी मुर्दा हैं और मुर्दा चीज़ों के पीछे जाते हैं और उन चीज़ों में से भी मुर्दगी निकलती है और हम उससे अपने आप को खुश करते हैं और हमारी खुशी, हमारी हकीकत जो है खुदावंद यीशु मसीह से बिल्कुल मुख्तलिफ है। खुदावंद हमें आज ये फैसला करने का मौका दे और खूब हमें अमल करने का मौका दे, हमारे अंदर जोश डालें, अक्ल दें, समझ दें कि हम लोग इस ज़िंदगी से जो खुदा ने हमें दिया है, मौका दिया है, इससे हम मुर्दगी को पसंद ना करें। हम आगे ही मुर्दा हैं, तो जिन चीज़ों से हमारे अंदर और मुर्दगी आएगी वो हमारी ख्वाहिशें हैं, तरह तरह के नशे हैं, गुनाह हैं, हम उनके पीछे भी जाते हैं। तो वो उनमें से भी अगर हम नशे को देखें, सिगरेट को देखें, शराब को देखें, किसी किस्म के ड्रग्स को देखें या किसी किस्म का भी दुनिया की चीज़ों का कोई भी नशा है हमारे अंदर, ख्वाहिश इतनी बढ़ गई है कि हम उन्हीं की बातें करते हैं, तो ये जान लें कि उनके अंदर से मुर्दगी आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है, आपके अंदर आ रही है और वो चीज़ें आपको मुर्दा और बना रही हैं और उनसे कोई फ़ायदा नहीं। उन मुर्दगी से आपको मुर्दा ही हम रहेंगे, हम कब्रों से नहीं निकलेंगे, हमारी कब्रें नहीं फटेंगी और हम जिंदा नहीं होंगे। हमें ये फैसला करना होगा। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।